Good morning, students. This is chapter 7 of book 2 for class 12th, minerals and energy resources. This is part 1 of this chapter. First of all, the introduction, what we have to introduce in this chapter, what we have to study in this chapter. India is endowed with a rich variety of mineral resources due to its varied geological structure. The mineral resources provide the country with the necessary base of industrial development. In this chapter, we shall discuss the availability of various types of minerals and energy resources in our country. So, a mineral is very important for the our economy, for the development of economy, for the it is very this is a raw material for the industrial development. Now, first of all, the meaning of mineral, yeah, we can say that if you have a question like define minerals, so you have to write down these lines. A mineral is a natural substance of organic or inorganic origin with definite chemical and physical properties, which means कि मिनरल जो है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं. इट कैन बी ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक इन नेचर. साथ में ही इसमें जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी. ठीक है, ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं. फॉर एग्जांपल कोल को हम ऑर्गेनिक मिनरल कह सकते हैं, पेट्रोलियम को हम ऑर्गेनिक मिनरल्स कह सकते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक जो है वो आपके ओर जो है, आयरन ओर जो है वो इनऑर्गेनिक ओरिजिन में हो सकता है. तो द मीनिंग ऑफ मिनरल इज mineral is a natural substance. It is a naturally found beneath the earth, a natural substance of organic or inorganic in origin with definite chemical and physical properties. उसकी एक specific properties हैं जो कि chemical and physical properties हैं. Types of minerals. On the basis of chemical and physical properties, minerals may be classified or it can be divided into two main categories, that is metallic and non-metallic. This is one table is given in your book and you have to make this table in your book or in your copy also. So, we can divide minerals basically broadly. We can say number 1 is metallic, number 2 is non-metallic, and here third type is also given, that is energy minerals. इसकी हम बात जो है हम नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में करेंगे, जो एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी मिनरल्स जो हैं. इस वीडियो में हम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ही डिस्कस करेंगे. एक मिनट, नीचे ही चला गया, हो जाएगा ना कट. Now, metallic mineral, it is divided into three parts: ferrous, non-ferrous and precious. Ferrous contains iron, यानी कि आयरन के पार्ट्स जो हैं उसमें मौजूद होंगे जिन मिनरल्स में, दैट कम्स अंडर द फेरस. द गुड एग्जांपल्स आर आयरन इज इटसेल्फ, मैग्नीज एंड निकल. And non-ferrous is an which do not have iron contains. For example, copper, lead, tin, bauxite, etc. Number 3 is precious minerals. It is also comes under metallic. ये metallic ही है, लेकिन this is comes under the category precious minerals. For example, gold, silver, platinum, etc. ठीक है. And non-metallic minerals, for example, mica, salt, potash, limestone, sandstone, marble, etc. ठीक है. And another one is mineral energy resources, which give the energies to the vehicles, automobile vehicles, etc. And this is example is coal, petroleum, natural gas, etc. ठीक है. So, this is a type of minerals. Now, we will discuss one by one. Number 1 is metallic minerals.
Metallic minerals are further divided into, again I have see in our table, like ferrous and non-ferrous. Ferrous as you know refers to the iron. Ferrous जो है वो iron से relate करता है. All those minerals which have iron content comes under the category of ferrous. For example, like manganese or iron itself, और इसके अलावा कौन सा था, nickel is also comes under the ferrous. Now next, non-metallic minerals. जो non-metallic minerals either organic or इनऑर्गेनिक सच एज फॉसल फ्यूल्स. यहाँ पर हम इन मिनरल्स को, एनर्जी रिसोर्सेज को जो हमने नेक्स्ट लेना है, लेकिन दीज मिनरल्स ऑल्सो कम्स अंडर द नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड दीज इफ द ओरिजिन पॉइंट इज ऑर्गेनिक then these are such as fossil fuels. Fossil fuels, mineral fuels which are derived from buried animals and plant lives. For example, coal and petroleum. यानी कि एनिमल्स के जो अवशेष हैं, जो बुरिड हो जाते हैं, बीच में ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, या आपके जो प्लांट्स हैं उनके पार्ट्स जो है वो दफन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उनके अंदर. तो दो टाइप के जो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बनते हैं. एक तो आ जाता है आपका कोल और दूसरा आ जाता है पेट्रोलियम. और अगर हम नॉन मेटालिक में इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, ओरिजिन की बात, तो है माइका, लाइमस्टोन और ग्रेफाइट. यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ मिनरल्स. what are the main characteristics of minerals are unevenly distributed. There are different types of minerals. They have a different quality or quantity of minerals. They may be in a good quality as well as compared to the less quality also. Some areas have very good क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स और कहीं पर मिनरल्स की क्वांटिटी जो है बहुत लेस भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है. अनदर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल का मतलब समाप्त हो जाने वाले. ये एक समय के बाद ये जितने भी मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज कि इनकी जो फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी स्लो. आज हम जो मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बनने में मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स जो हैं वो लगे हैं, और जबकि हमने इनको ख़त्म जो है विद इन 200 ईयर्स में ही मैक्सिमम हम इसका यूज़ करते जा रहे हैं. These take long to develop geologically and they cannot be replenished immediately at the time of need. ऐसा नहीं है कि ये हम जल्दी से ये बन जाएं और हम इसका इस्तेमाल रेगुलरली करते रहें. So that we have to be conserve that and not misused as they do not have second crop. यानी कि ऐसा नहीं है कि हम आज इसको इस्तेमाल कर लें और 6 महीने के बाद हम नई जो है नए कोल जो आ जाएंगे या आयरन ओर क्रिएट हो जाएगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी हैव टू बी कंजर्व इट एंड वी हैव नॉट टू बी मिसयूज इट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं, नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स अकर इन अ पेनिनसुलर प्लेटो. जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है यानी कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है और ये ओल्डर पार्ट ऑफ द इंडिया है, एंड दिस इज ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स है, और जहाँ पर 97% कोल रिजर्व्स जो हैं वो यहीं पर ही पाए जाते हैं. दैट इज इन दामोदर, सोल एंड महानदी, गोदावरी रिवर वैलीज. पेट्रोलियम रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो ये सेडिमेंट्री बेसिन्स में पाए जाएंगे, और ये कौन सा एरिया आ जाता है, असम, गुजरात एंड मुंबई हाई, और इन सम पार्ट ऑफ ऑफशोर रीजन इन अरेबियन सी. न्यू रिजर्व्स जो हैं वो कुछ और भी हमें लोकेट हुए हैं, दैट इज इन कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन ऑल्सो. Most of the major minerals occur in the east of the line linking Mangalore and Kanpur also. मिनरल रीजन की बात करते हैं. अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द मिनरल रीजन्स ऑफ इंडिया, सो वी हैव अ 3 बेल्ट्स ऑफ मिनरल रीजन्स. ये 3 बेल्ट्स कौन सी हैं? द नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेटो रीजन, द साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. ठीक है, दीज 3 बेल्ट्स हैं, और वन बाय वन वी कैन सी. The northeastern plateau region, the belt covers Chota Nagpur,
Jharkhand, Odisha Plateau, West Bengal and parts of Chhattisgarh. It has variety of minerals, for example iron ore, coal, manganese, bauxite and mica is found here. Another one is the southwestern plateau region. ये साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन कौन सा आ गया? ये आपका आ गया कर्नाटका, गोवा एंड तमिलनाडु एंड अपलैंड्स ऑफ केरला. The belt is rich in ferrous and bauxite. The high grade of iron, manganese and limestone is found here, and this belt packs in coal deposit also except Navili lignite. This belt does not have a diversified mineral deposits in a northern eastern belt. Kerala has deposit of monazite, thorium, bauxite clay. Goa have the iron ore deposits. Now this is the third belt, the north western belt, यानी कि राजस्थान वाला पार्ट आ जाता है इंडिया का एंड गुजरात पार्ट आ जाता है. दिस बेल्ट एक्सटेंड्स अलोंग द अरावली हिल्स. ठीक है, इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात एंड it is also associated with Dharwad system of rocks. Copper, zinc are the main minerals. Rajasthan is very rich in building materials, for example building stones, sandstones, granite, marble, etc. Gypsum and fuller's earth deposit are also extensive. Dolomite and limestone is also raw material for the cement industry. Gujarat is known for the petroleum deposits. Gujarat and Rajasthan is also have rich sources of salt. नमक यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है क्योंकि evaporation जो है वो बहुत ज़्यादा है इन एरियाज में. एक और पार्ट है हमारा जिसको हम 3 पार्ट्स में नहीं लिया है, लेकिन एक और पार्ट है. दिस इज द हिमालयन बेल्ट. हिमालयन में भी छुटपुट माइनर बेल्ट्स हैं जहाँ पर जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं. एंड सम और पार्ट इन ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट जैसे कि असम वैली जो है यहाँ पर भी काफ़ी सारे मिनरल ऑयल डिपॉजिट जो हैं यहाँ पर पाए जाती है. बिसाइड्स द ऑयल रिसोर्सेज जो हैं वो मेनली कहाँ पर है? मुंबई कोस्ट, जिसको हम बॉम्बे हाई कहते हैं. ठीक है, अब आ गया वन बाय वन फेरस मिनरल. फेरस मिनरल्स सच एज आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइड, ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं इनको हम फेरस मिनरल्स की कैटेगरी में रखेंगे. This is the base for the development of metallurgical industries. Metallurgical industries यानी कि जहाँ पर मेटल को बनाया जा रहा है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है जहाँ पर है मेनली, तो वहाँ पर मैग्नीज की भी ज़रूरत है, आयरन की भी ज़रूरत है एंड कोल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड देयर. आवर कंट्री हैव वेल प्लेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फेरस, यानी कि हमारे देश में आयरन ओर जो है उसका रिजर्व्स जो बहुत ज़्यादा हैं और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा खासा है. और अगर हम अगर हम ब्रिटिश टाइम को देखें तो उस समय भी आयरन ओर जो है हमारे देश से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया था. Iron ore in India is fairly abundant resources of iron ore. We have the largest reserve of iron ore in Asia. There are 2 types of this iron ore is found, hematite and magnetite. यहाँ पर आपको example MCQ आ सकता है, how many types of iron ore, hematite and magnetite is found here. The great demand in international market because this type of iron ore is in a superior quality. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, अब भारत में कहाँ कहाँ पर जो आयरन है वो वहाँ पर पाया जा रहा है. दैट इज दीज आर द सम स्टेट्स जहाँ पर आयरन ओर जो है मैक्सिमम पाया जा रहा है. वो कौन सा है? दैट इज उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. दीज आर द स्टेट्स जहाँ पर 95% आयरन ओर है. अब हम यहाँ पर उड़ीसा की बात करेंगे. उड़ीसा में कौन सा है? हिल रेंजेस ऑफ सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार. द इम्पॉर्टेंट माइंस कौन सी हैं? वो ये माइंस जो हैं गुरु मेहसानी, सोलाईपट, बदम पहाड़, देन किरुबुरु,
क्योंझर में है, ये मयूरभंज में है, ये बोनई में सुंदरगढ़ है. तो these are some points. Most of the important mines such as Nayomodi, Goa are located in Purbi and Paschimi Simbhumi district. This belt further extends to Durg, Dantewada and Biladila. Delhi and Rajhara is in Durg are important mines of iron ore in the country. अब हम बात करते हैं कर्नाटका की. कर्नाटका के ये एरियाज हैं सुंदर हॉस्पेट एरिया ऑफ बेलेरी डिस्ट्रिक्ट, बाबा बुदान हिल्स एंड कुदेरमुख in Chikmagalur district and parts of Simoga, चित्रदुर्ग एंड तुमकुर डिस्ट्रिक्ट्स. तो ये पार्ट्स जो हैं यहाँ पर आपका एक मैप बना हुआ है. यहाँ पर आपको आयरन ओर के एरियाज हैं. अब यहाँ पर मैं जो स्पेसिफिकली आपको कहना चाह रही हूँ कि आपको स्टेट्स के साथ आपको मालूम होना चाहिए कि लाइक दिस इज ए महाराष्ट्र, दिस इज ए कर्नाटका, दिस इज ए तमिलनाडु, दिस इज ए आंध्र प्रदेश, दिस इज ए तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ या यहाँ पर आपका उड़ीसा आ गया. तो आपको स्टेट वाइज आपको माइंस को याद करना है और कौन सी स्टेट में कौन सी माइन है वही आपको एग्जाम में आएगी. आपको स्टेट पूछा जाएगा या आप मान लीजिए ये क्योंझर जो है, क्योंझर है यहाँ पर, या जो बालाडीला है, इस तरह से नाम दिया जाएगा एंड यू हैव टू राइट ऑन कि यहाँ पॉइंट आप लगाएंगे कि ये कौन सी स्टेट में है. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मैप को प्रिपेयर करना है स्टेट वाइज. नेक्स्ट इज मैग्नीज. मैग्नीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर and also used for manufacturing ferro alloys. Manganese is very important raw material for the manufacturing of iron and steel industry. Manganese deposits are found in almost all geological formation. However, Dharwad system जो है, जहाँ पर धारवाड़ एरिया जो है, that is the main where we found this manganese. Distribution of manganese mainly in Orissa. उड़ीसा में कहाँ कहाँ है? बुनई, क्योंझा, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी एंड बोलांगीर. एंड कर्नाटका धारवाड़, बिल्लेरी, बेलगांव, नॉर्थ कैनरा, चिकमंगलूर, सिमोगा, चित्रदुर्ग एंड तुमकुर. महाराष्ट्र में नागपुर, बांद्रा एंड रत्नागिरी. आंध्र प्रदेश, गोवा एंड झारखंड, यहाँ पर भी कुछ मिल्स हैं बट दे आर वेरी माइनर प्रोड्यूसर्स. नॉन फेरस मिनरल्स की बात आ जाती है. नॉन फेरस में आ जाते हैं बॉक्साइट एंड कॉपर. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्साइट. बॉक्साइट इज द ore which is used in manufacturing of aluminium. Bauxite is found mainly in tertiary deposits and is associated with laterite rocks occurring extensively either on plateau or hills and ranges ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. तो जो बॉक्साइड है वो जो ये ओर का नाम बॉक्साइड है और इसी से हम एल्यूमिनियम को निकाला जाता है. और ये कहाँ पर है? टर्शरी डिपॉजिट्स जो हैं वह यहाँ पर लेटराइट रॉक्स जहाँ पर पाई जाती हैं वहाँ पर ये बॉक्साइड ज़्यादा मिलता है. Now come to the distribution. बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर है? अगेन दिस इज द अगेन पार्ट उड़ीसा. उड़ीसा में कालाहांडी, संबलपुर लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, बोलांगीर एंड कोरापुट. झारखंड में लोहारदंगा, गुजरात एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड अदर मेजर पार्ट्स आल्सो देयर. एंड गुजरात में भावनगर एंड जामनगर. छत्तीसगढ़ में अमरकंटक प्लेटो है और मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर एंड बालाघाट. एंड महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सितारा, पुणे एंड कोल्हापुर. एंड तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, यहाँ पर भी माइनर प्रोड्यूसर्स हैं. Now distribution of bauxite. Odisha happens to be the largest producer of bauxite. Odisha, Kalahandi, Sambalpur are the leading producers and Bolangir and Koraput. झारखंड में कौन सा आएगा? लोहारदगा एंड गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आल्सो. गुजरात में भावनगर एंड जामनगर. छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक, मध्य प्रदेश, कटनी, जबलपुर एरिया, बालाघाट, महाराष्ट्र, कोलाबा,
महाराष्ट्र में है कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे एंड कोल्हापुर। तमिलनाडु में कर्नाटका, गोवा एंड माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर जो आपके मैप में दे रखे हैं, जो आपने उन्हीं एरियाज को याद करना है जो कि आपके मैप में है, ठीक है। जो लिस्ट ऑफ राइटिंग में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वह आप उन एरियाज को आप लिखेंगे, लेकिन अगर आपको मैप वर्क आएगा तो मैप वर्क आपका जो एनसीईआरटी की बुक में जो मैप में जो एरियाज दिखाए गए हैं उन्हीं को ही आपने याद करना है। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड बॉक्साइट का ये मैप है, जैसे कि यहाँ पर ये स्टार जो है 4 स्टार्स नजर आ रहे हैं राजस्थान में, खेतरी, अलवर, भीलवाड़ा एंड उदयपुर। तो आपसे राजस्थान में खेतरी पूछ लेंगे कि खेतरी कॉपर माइन है कहाँ पर है, तो आप फटाक से आप क्या करेंगे, राजस्थान में पॉइंट लगाएंगे और खेतरी लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपसे बॉक्साइट का पूछा जा सकता है या आपका बालाघाट पूछा जा सकता है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आपने मैप वर्क जो आपकी किताब में दे रखा है वही मैप वर्क आप याद करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मैप वर्क, ठीक है। नाउ कम टू द कॉपर। कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन फेरस रिसोर्स है, मेटल है, मेटेलिक में ही आएगा, लेकिन ये नॉन फेरस है। कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज for the making of wires, electric motors, transformers, generators, ये इसके uses हैं। और ये अलायबल है, यानी कि दूसरी जो मेटल्स हैं उनको जोड़ने के काम भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ऑल्सो मिक्सड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ज्वेलरी। जो ज्वेलरी बनाई जाती है गोल्ड की, उसमें जहाँ पर भी टंका लगाया जाता है वो कॉपर का ही लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर जो है वो मेनली झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। झारखंड में सिंहभूमि आ जाएगा, और मध्य प्रदेश में बालाघाट, और राजस्थान में झुंझुनू, अलवर एंड मोर एरियाज आर आल्सो गिवन। माइनर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका है एंड तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन दिस मैप। राजस्थान में हम यहाँ पर जो राइटिंग में दे रखा है वो पर 2 ही दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में 4 कॉपर माइंस हैं, खेतरी, अलवर, भीलवाड़ा एंड उदयपुर, ठीक है। अब आ गया नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है इसमें नेक्स्ट जो आ जाता है नंबर 1 इज नॉन मेटालिक जो है वो एक ही बार यूज होते हैं, जिसमें इंडिया में जो माइका ये है, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड फॉस्फेट इज ऑल्सो। माइका मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। अगर एक ये थिन शीट जो है, ये चमकदार शीट जो है ये बन होती है, और इसको मोस्टली प्रेस को अगर आप खोल के देखें तो उसमें एक चमकदार शीट जो है वो मिलती है। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स। इनको बहुत पतली शीट्स में, जो फ्लैक्सिबल शीट्स में निकाला जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है? माइका का जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मेनली झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, और देयर आर सम मोर स्टेट्स, दैट इज तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। झारखंड में हजीराबाग प्लेटो जो है, यहाँ पर हाई क्वालिटी का माइका मिलता है, और आंध्र प्रदेश में नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान में भीलवाड़ा, उदयपुर है, कर्नाटका में मैसूर है, हसन है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी, देन केरला में एलेपी और रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, एंड जो आपका वेस्ट बंगाल है दैट इज इन पुरुलई एंड बुंकारो। Now come to the assignment of this portion. Define minerals, types of minerals with the examples of एग्जाम्पल्स के साथ आपने डिस्ट्रीब्यूशन, इसके नोट्स बना लेंगे आप। फेरस मिनरल्स बनाएंगे, फिर नॉन फेरस बनाएंगे, फिर उसके बाद उनके एरियाज बताएंगे। तो कि नेक्स्ट जो वीडियो हम इसके ही आगे की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वहाँ पर असाइनमेंट के साथ ही मैंने वो टेबल दे रखा है, उस टेबल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इसमें तीनों बेल्ट्स बताएंगे, कौन सी
3 बेल्ट्स हैं और इसके साथ ही आपने हिमालयन बेल्ट को भी डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स विद द एग्जांपल्स। यहाँ पर फेरस मिनरल्स कौन से हैं, नॉन फेरस मिनरल्स कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स बताएंगे। फिर इसी तरह से मेटालिक, नेम द मेटालिक मिनरल्स and non-metallic minerals. I hope you get this, you understand this part of the lesson. And map work is also given. Iron ore mines in Odisha, Karnataka, Chhattisgarh, Maharashtra. So go through the map and make the map for the iron ore separately and manganese and bauxite and copper in राजस्थान। ठीक है, तो ये तीनों मैप्स में यहाँ पर 3 मैप्स आपके बनेंगे। आयरन ओर के आपने एरियाज उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का दिखाना है। ऐसे ही मैग्नीज का एरियाज दिखाने हैं, बॉक्साइड एंड कॉपर के, और इसके सिंबल्स आप बना दीजिए। आयरन का ओर का अलग सिंबल हो जाएगा, मैग्नीज का अलग, जो भी बुक में जो सिंबल्स दे रखे हैं उसको। अब यहाँ पर जो बॉक्साइड एंड कॉपर है, यहाँ पर आप कलर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बॉक्साइड इस कलर से दिखा रहे हैं एंड कॉपर जो है वो इस कलर से दिखा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। यहाँ पर लर्निंग पोर्शन जो है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा है, तो इसको चार्ट के ज़रिए या टेबल के ज़रिए इसको आप याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।